और अब बात करेंगे उस अंतरिक्ष अभियान की जिसमें भारत के बेटे ने कमाल किया है। हम बात कर रहे हैं एक्सियम 4 मिशन की। कल का दिन महत्वपूर्ण था और आज का दिन भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आज इस मिशन की डॉकिंग प्रक्रिया होनी है। स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल आज ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से जुड़ेगा और उसके लिए जो समय मुकर्रर किया गया है वो है 4:30 बजे का। अब तक सब कुछ जो पूरी ट्रेजेक्ट्री रही है लॉन्च से लेकर और ISS तक पहुंचने की पूरी ट्रेजेक्ट्री एकदम दुरुस्त रही है। किसी किस्म की कोई खामी, किसी किस्म की कोई बाधा नजर नहीं आई है। आज का वो लम्हा भी काफी इंपॉर्टेंट है जब डॉकिंग की जाएगी। और आपको बता दें कि ये इस समय की लेटेस्ट तस्वीरें हैं, यानी कि ताजा तस्वीरें हैं जिसमें आप चारों अंतरिक्ष यात्रियों को देख सकते हैं। It's an amazing feeling to be in orbit for the first time. When I unbuckled for the first time, I didn't feel 100%, but then everything settled, and when I looked out through the window for the first time, the view was just stunning. Where we are? Now we are flying over Europe. We have just before this conference we saw passing Italy, Sicily, the Greek islands, and the Balkans, and now we are going a bit slightly up north, so towards Hungary and Poland a bit on the side. So yes, this is a great moment to be able to see back on Europe, on home, on our countries, and yes, Maggie. You can show the view through the window. Okay. सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं और जो अंतरिक्ष यात्री मुखातिब थे अपनी बात कह रहे थे, उन्होंने कहा कि हम आसमान से इस समय आपको देखकर बता सकते हैं अंतरिक्ष से कि इस समय हम कहां पर फ्लाई कर रहे हैं। तो इस समय ये जो कैप्सूल है इसकी जो फ्लाइंग ट्रेजेक्ट्री है वो यूरोप के ऊपर से ये यूरोप का नजारा देख पा रहे हैं। आइए उनकी बात सुनते हैं। I'm thrilled to be here with my fellow astronauts, as Peggy said, 1 veteran and 3 rookies, and wow, what a ride it was. Frankly, when I was sitting in the capsule in Grace yesterday on the launch pad, my only thought in my mind was that let's just go. After 30 days of quarantine, it was a feeling that I just wanted to go. You know, the excitement and all was, probably far away. It was just the feeling that let's just leave here. But when the ride started, it was something like you're getting pushed back into the seat. It was an amazing ride. And then suddenly, nothing. Everything silenced, and you were just floating. You unbuckle, and you were just floating in the silence of vacuum. It was an amazing feeling. I wanted to take this opportunity to thank everyone who has been a part of this. I understand that this is not a personal accomplishment. It is a collective achievement of each and every one of you who has been a part of this journey, and to make this possible, I really want to thank each one of you. Also to family and friends, your support has mattered so much. This is so much because of all of you guys. We showed you joy and grace. This is Swan, a great symbol. It looks really cute, but we have a very important swan in our Indian culture, which we are about. Swan symbolizes wisdom. It also has the ability to discern it should be focused on and what does not. So basically, the golden age of distraction, I would say. So this means a lot more, not just a zero-G indicator for us. And I think that we all have symbolism in Poland and in Hungary, in India as well. So I think this looks like a coincidence, but it is not. That it has more meaning than what we are attaching it to it. The capsule itself, Grace, has been very kind. I have been feeling, I was not feeling very great when we, got shot into the vacuum. But since yesterday, I've been told that I've been sleeping a lot, which is a good sign. So I think that's a great sign. I'm getting used to this quite well, enjoying the views, enjoying the entire experience, learning like a baby, learning the new steps, learning how to walk, learning how to control yourself, everything, learning how to eat, I think. So it's a new environment, new challenge, and I'm really enjoying this experience with my fellow astronauts here. And
it's good to make mistakes, but it's better to see somebody else do that too. So, so it has been a fun time up here. That is all I have to say. Thank you so much, guys, for making this happen, and I'm sure that we are going to have a great time. And with this, I will hand over to Tibor now. तो अभी आप शुभांशु शुक्ला को सुन रहे थे। कुल मिलाकर 4 अंतरिक्ष यात्री इस समय स्पेस कैप्सूल में मौजूद हैं और वो बाहर का नजारा दिखा रहे थे कि अंतरिक्ष से नज़ारा कैसा दिखता है। यूरोप के ऊपर से जिस समय फ्लाई कर रहे थे, यूरोप का नज़ारा उन्होंने दिखाया और साथ ही साथ शुभांशु शुक्ला ने ये कहा कि ये जो यात्रा रही है इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है। आपको बता दें कि आज का दिन इस मिशन के लिए बेहद अहम है। जितना लॉन्चिंग था उतना ही आज का डॉकिंग का मिशन अहम है। शुभांशु शुक्ला ने एक स्वान यानी कि हंस को भी दिखाया और उन्होंने बताया कि भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में इसका क्या महत्व है। हंस दरअसल भारतीय परंपरा में और भारतीय जो संस्कृति है उसमें विजडम यानी विवेक का प्रतीक माना जाता है, बुद्धि का प्रतीक माना जाता है और उसके माध्यम से वो ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जब आप एक जीवन के नए पड़ाव की तरफ गुजरते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है और यही एहसास वो साझा कर रहे हैं पूरी दुनिया के साथ कि जब मैं इस मिशन पर आया हूं तो मुझे भी नए सिरे से बहुत सारी चीजों को सीखने का यहां पर मौका मिल रहा है। जीवन का एक अलग ही पहलू यहां पर नजर आ रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि खुद पर कैसे नियंत्रण रखना है, खुद को कैसे शांत रखना है इतने बड़े मिशन के लिए, ये भी वो यहां पर सीख रहे हैं। अपनी इस यात्रा के बारे में उन्होंने कहा कि हम यहां पर बहुत एंजॉय कर रहे हैं, समय कैसे गुजर रहा है पता ही नहीं चल रहा, चारों तरफ एकांत है, ये कैप्सूल है और हम 4 अंतरिक्ष यात्री हैं। तो पूरी दुनिया में जहां जहां लोग इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे थे उन सबको उन्होंने ये संदेश दिया है कि इस पूरे मिशन की सफलता, इसको सफल बनाने के लिए सबकी कुछ ना कुछ भागीदारी है और वो उम्मीद करते हैं कि जो मिशन उन्हें सौंपा गया है, 15 दिन का जो मिशन उन्हें सौंपा गया है, वो जो काम उन्हें सौंपा गया है उसे पूरी तरह से उसे वो मुकम्मल करके आएंगे। तो उन्होंने, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि नया कुछ सीखने को मिलता है हर नए मिशन में, जीवन के हर पड़ाव में, तो उन्होंने भी कहा कि मैं भी यहां पर सीख रहा हूं और ना केवल सीख रहा हूं बल्कि बच्चे की तरह सीख रहा हूं। तो ये बड़ी बातें शुभांशु शुक्ला ने इस मिशन के इस लाइव टेलीकास्ट में दिखाई हैं और अच्छी बात यह है कि मिशन के तमाम अहम पड़ावों पर हमें अंदर की जो कैप्सूल के अंदर की तस्वीरें हैं वो देखने को मिली हैं। चाहे लॉन्चिंग के समय हमने देखा कि चारों एस्ट्रोनॉट्स पूरी काम कंपोज पोस्ट में उसमें बैठे हुए थे और पूरी तरह अपने मिशन के पर एकाग्रचित थे। और आज जबकि अब उनकी यात्रा बढ़ रही है आईएसएस की तरफ, आज डॉकिंग होने वाली है शाम 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार और ये भी एक अहम पड़ाव है इस मिशन का। और उससे पहले ये लाइव टेलीकास्ट किया गया इन तमाम एस्ट्रोनॉट्स का, अंतरिक्ष यात्रियों का, जिसमें उन्होंने इस यात्रा के अनुभव को साझा किया। चारों के चारों बेहद खुश नजर आ रहे हैं, हल्के फुल्के मोमेंट्स को भी उन्होंने साझा किया और अपने एक्सपीरियंस को उन्होंने बताया। उन्होंने ये बताया कि हमने किस किस एक क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी और कहां कहां हम गए। जिस समय ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा था उस समय यूरोप के ऊपर से वो गुजर रहे थे और अपनी जो ट्रेजेक्ट्री है यानी कि जो उनका रास्ता है आईएसएस की तरफ, उस पर वो लगातार बढ़ रहे हैं। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये यान इस समय आईएसएस यानी कि अंतरिक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसके साथ आज उसका जुड़ाव होगा, डॉकिंग होगी और डॉकिंग की प्रक्रिया अहम होती है क्योंकि डॉकिंग के बाद ही अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में उनकी एंट्री होगी जहां पर उनका स्वागत किया जाएगा पूरी गर्मजोशी के साथ। डॉकिंग का मतलब यह है कि दो चीजों को आपस में जोड़ना, यानी कि जैसे कि एयरपोर्ट पर लैंड करता है प्लेन, ऐसे ही आईएसएस पर एक प्रकार से लैंडिंग ये होगी इस कैप्सूल की, वहां पर इसका जुड़ाव होगा और जब जुड़ाव की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, डॉकिंग की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, उसके अंदर तमाम एस्ट्रोनॉट्स फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दाखिल होंगे और 60 से ज्यादा प्रयोग करने होंगे। Of the patch, this is exactly how we see the view from here, from Grace, from up the orbit. We all four here represent quite a big chunk of